to all my lovely NEET aspirants. How are you doing? I hope you are doing really well. Little bit nervous because the exam is near? Why fear when I am here? Today, we'll discuss in this video a very important and an interesting topic called RAS mechanism. Renin-angiotensin-aldosterone system. Afraid of this topic, but from now you will not be afraid. आज मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगी कि आपको बिल्कुल आराम से आ जाएगा और फिर आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। चलो, इस मैकेनिज्म को करने से पहले हम कुछ चीजें जानते हैं। This mechanism is basically to regulate the glomerular filtration rate in our body. अब आप पूछोगे GFR क्या है? तो GFR सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। तो GFR का मतलब क्या होता है? GFR stands for glomerular filtration rate. मतलब the amount of filtrate formed by kidneys per minute. एक मिनट में हमारी किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाती है उसे क्या कहते हैं? GFR. Glomerular filtration rate. क्या होता है ये? Amount of filtrate formed by kidneys per minute. तो ये हमारा क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। जब भी हमारी बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नीचे जाता है, व्हेन इट डिक्रीजेस, अ मैकेनिज्म गेट एक्टिवेटेड कॉल्ड RAS mechanism, renin-angiotensin-aldosterone mechanism. It's a hormonal control mechanism. पर ये मैकेनिज्म कौन एक्टिवेट करता है, कैसे होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा juxtaglomerular apparatus. So some terms related to it. The first term is juxtaglomerular apparatus. In short, JGA. JGA क्या होता है? It is a sensitive region, a special sensitive region of specialized cell which are formed at the junction of afferent arteriole and DCT, distal convoluted tubule. आपको पता है किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं वो क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में वी हैव अ बोमेन्स कैप्सूल जो कंटिन्यू होता है PCT में, फिर लूप ऑफ हेनले एंड देन वी हैव अ DCT. DCT घूम कर आती है और पीछे से एंड इट इज फेसिंग जस्ट नेक्स्ट टू दी ग्लोमेरुलस. हमारे ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. इसके जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट ये प्रेजेंट होती है और जहां पर एफरेंट आर्टीरियोल और DCT का कांटेक्ट होता है वहां पर कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एंड दो स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव सेल रीजन इज कॉल्ड JGA, juxtaglomerular apparatus. Juxta का मतलब क्या होता है? Adjacent, just next to. क्योंकि ये सेल्स जो है DCT के या ये जो apparatus है ये ग्लोमेरुलर के जस्ट नेक्स्ट है, एडजेसेंट है, इसलिए juxtaglomerular apparatus. So a special sensitive region formed at the junction of distal convoluted tubule, see distal convoluted tubule and afferent arteriole. Afferent और efferent का मतलब क्या होता है? Afferent का मतलब होता है towards something. So afferent arteriole are branches of arteries that take blood towards nephron. और efferent
एफरेंट मीन्स टुवर्ड्स समथिंग, है ना। और इफरेंट का मतलब क्या होता है? अवे। सो इफरेंट आर्टीरियोल टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन। ये किसके बीच का जंक्शन है? एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के जंक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर some cells get modified and that form a special sensitive region called JGA. Why do we call them sensitive region? Because they can sense. What can they sense? They can sense the fall in the GFR rate. देखिए, ये रही हमारी डिस्टल ट्यूब्यूल, ये हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल है। डिस्टल ट्यूब्यूल के cells जो हैं which are just located next to the glomeruli and this afferent arteriole, afferent हमारी arteriole जो है वो wide होती है diameter में, जबकि efferent the one who is leaving the nephron is smaller, narrower in diameter। तभी इसी difference in diameter की वजह से glomeruli में pressure create होता है और filtration होता है blood का। तो यहाँ इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्पेशल सेंसिटिव जो रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और दूसरे सेल का नाम है मैक्यूला डेंसा। मैं आपको बताती हूँ इनका मतलब क्या है। देखिए, पहला टर्म है, देखिए पहला टर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus is basically a special sensitive region formed at the junction of afferent arteriole and DCT, afferent arteriole and DCT. This apparatus has two kinds of cells, two kinds of cells। कौन कौन से? पहला सेल टाइप है जक्स्टा ग्लोमेरुलर cells। Juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cells are basically cells of afferent arteriole lying adjacent to the glomeruli. Afferent arteriole के वो cells, ये रहा आपका afferent arteriole जो कि बिल्कुल glomeruli के adjacent होते हैं, उनको बोलते हैं juxtaglomerular cells। क्या बोलेंगे? juxtaglomerular cells। ये देखो एफरेंट आर्टीरियोल के हैं जो जंक्शन पर होते हैं, डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के जंक्शन पर एफरेंट आर्टीरियोल के सेल्स क्या कहलाते हैं? juxtaglomerular cells। इनका काम होता है टू बेसिकली रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। Cells of afferent arteriole which releases renin, RENIN, डबल NIN मत कर देना, RENIN
NIN, स्पेलिंग का ध्यान देना। रेनिन जो है वो यहाँ पर एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है। रेनिन ऑन एक्टिवेशन ऑफ JGA, जब भी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस एक्टिवेट होता है तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, एक एंजाइम कॉल्ड रेनिन, RENIN। दूसरे टाइप ऑफ सेल्स हैं मैक्यूला डेंसा। JGA के दूसरे टाइप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, मैक्यूला डेंसा। देखो DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके जो सेल्स होते हैं ना वो क्यूबॉइडल होते हैं, बट एट द जंक्शन of the afferent arteriole and DCT and the cells of DCT facing the glomeruli, the cells become columnar. So these columnar cells, they are kind of columnar cells of DCT lying adjacent to glomerulus at the junction of DCT and afferent arteriole. Afferent arteriole. Otherwise सेल्स DCT के कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल, पर मैक्यूला डेंसा के सेल्स कैसे होते हैं, अंडरलाइन करना, दे आर कॉलमनर सेल्स। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो DCT और एफरेंट आर्टीरियोल के जंक्शन पर बनता है। देखो DCT और एफरेंट आर्टीरियोल के जंक्शन पर, इनके जंक्शन पर जो ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन, सेंसिटिव इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे कैन सेंस द फॉल इन GFR, तो ये एक्टिवेट होते हैं, इसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। Two very important specialized kind of cell which are part of JGA are macula densa and juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cells और macula densa part हैं किसका, JGA का। Juxtaglomerular cells afferent arteriole के वो cells जो कि junction पर located है and which basically secrete renin enzyme, RENIN, renin enzyme on activation of JGA। और मैक्यूला डेंसा क्या है, ये कॉलमनर सेल्स हैं DCT के at the junction of DCT and afferent arteriole, जो बेसिकली क्या करते हैं, they can sense, these cells can, the function of these cells is they can sense the fall, they can sense the fall in GFR rate and then sends the signal to JGA cell, JG cells यानी juxtaglomerular cells to secrete renin. रेनिन सिक्रीट करने के लिए उनको सिग्नल देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रहा DCT का वो पोर्शन जो कि JGA का पार्ट है, जिसमें ये देखो, ये जो है कॉलमनर सेल्स हैं, these are columnar cells, pillar like cells, जो कि कहलाते हैं मैक्यूला डेंसा।
जब भी JFR रेट फॉल होगा ये सेंस करेंगे और फिर JG सेल्स को, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, जिनको रेनिन प्रोड्यूसिंग सेल भी कहते हैं, सिग्नल भेजेंगे कि भाई अब JFR फॉल हो रहा है, तुम एंजाइम रिलीज कर दो ब्लड में विच इज कॉल्ड रेनिन। आया समझ में कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या है? अब देखो बेटा होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो ब्लड, किडनी में जाने वाला ब्लड भी कम प्रेशर से जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल में जो ब्लड जा रहा है वो भी कम प्रेशर से जाएगा। कम प्रेशर से जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, यानी GFR का फॉल होगा। कब होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। ब्लड प्रेशर कब डिक्रीज हुआ? जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ठीक है, रैस मैकेनिज्म मैं आपको समझा रही हूं कि कैसे होता है। जब भी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सपोज कोई इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हुआ, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एम्पल रीजंस है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? वो भी डिक्रीज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो GFR रेट भी क्या हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही GFR डिक्रीज हुआ, जो आपके मैक्यूला डेंसा थे, JGA के, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के मैक्यूला डेंसा सेल इसको सेंस कर लेंगे। फटाफट उन्होंने सेंस किया कि भाई बॉडी में GFR गिर रहा है, फिल्ट्रेट अब कम बन रहा है, तो वो सिग्नल देंगे किसको? JG सेल्स को, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, एफरेंट आर्टीरियोल के, कि तुम्हारी बारी आ गई है, अब तुम ब्लड में रेनिन सिक्रीट कर दो। सो व्हेन दिस GFR falls, juxtaglomerular apparatus gets activated. एक्टिवेट हो गया। जैसे ही JGA एक्टिवेट हुआ, तो क्या होगा? यहां देखो, यहां बनाती हूं इसका माइंड मैप। JGA एक्टिवेटेड, विच मीन्स, जिसका मतलब है कि ये सिग्नल देगा मैक्यूला डेंसा सेल्स को। This fall in GFR, this senses the fall in GFR, sends signal to juxtaglomerular cells, and then they secrete renin in blood. Juxtaglomerular apparatus एक्टिवेट होता है जब GFR का रेट गिरता है। GFR का रेट कब गिरता है? जब ब्लड का वॉल्यूम गिरेगा, प्रेशर गिरेगा तो GFR गिरेगा। JGA एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम से सेंस कर लेगा। JGA में कौन सेंस कर रहा है? मैक्यूला डेंसा सेल। ये क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया कि दे आर द कॉलमनर सेल्स ऑफ DCT। ये सिग्नल्स देते हैं किसको? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, जिनको रेनिन सिक्रीटिंग सेल भी कहते हैं, और वो रेनिन सिक्रीट करने लगते हैं किसमें? ब्लड में। यहां तक माइंड मैप समझ में आया?
अब जो रेनिन सिक्रीट हुआ ब्लड में उसका क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रेनिन क्या करेगा। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, एक तरीके की प्रोटीनेशियस एंजाइम। हमारे ब्लड पे एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन। देयर इज एन पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन in our blood. And this angiotensinogen is secreted by liver. ये कौन बनाता है बच्चों, लिवर बनाता है। लिवर क्या बना रहा है, एक पेप्टाइड हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन। आपको एंजियो का मतलब पता है, एंजियो का मतलब होता है वेसल, और टेंसिनोजन मतलब टेंशन, सो इट बेसिकली गोइंग टू डू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, है ना। एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, सो इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म, यानी अभी एक्टिवेटेड नहीं है और ये हमारे ब्लड में रहती है, ठीक है। जब GFR फॉल हुआ, रेनिन सिक्रीट हुआ बाय दी JGA, fall in GFR, JGA activated and JGA क्या सिक्रीट करते हैं, रेनिन, RENIN। रेनिन जो है ब्लड में आता है और एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू, इट एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एंजियोटेंसिन 1। किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1। ये एक एक्टिव फॉर्म है, पर बेटा एंजियोटेंसिन 1 ना बहुत ही माइल्ड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे बहुत ही माइल्ड है, ज़्यादा पोटेंट नहीं है, लेस पोटेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेस पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो मीन्स ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर आया है कॉन्स्ट्रिक्शन से वर्ड, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, टू नैरो डाउन, है ना, नैरो डाउन करना। तो अब हमें तो अपना ब्लड वॉल्यूम रेट बढ़ाना है भाई, क्योंकि हमें GFR को वापस लेके आना है, तो हमें क्या चाहिए, उससे भी ज़्यादा पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, एक और भी अच्छे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर में, विच इज एंजियोटेंसिन 2, मोर पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड रेट है, प्रेशर, वॉल्यूम, वो वापस से रीगेन हो जाएगा और GFR बढ़ जाएगा। पर एंजियोटेंसिन 2 बना कैसे, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में किसी ने तो कन्वर्ट किया होगा, सो ये कन्वर्ट किया है एक एंजाइम ने, कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ पे लिखती हूँ ACE। चलो हम एक काम करते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं, जो भी हमारी ACE, यहाँ पर किसने काम किया, रेनिन ने काम किया। अब ACE क्या है, एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यहाँ पर मैं स्टार पॉइंट बनाती हूँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, ACE। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय lungs in the blood। lungs हमारी सिक्रीट करती हैं ACE। जब ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग में जाएगा तो साथ में क्या लेके आएगा? ACE। लंग ने बनाया है वो लेके आएगा, और क्योंकि ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है तो ACE कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 को किस में? एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या हुआ। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, GFR डिक्रीज हुआ, JGA सतर्क हो गए, एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने कैसे एक्टिवेट हुए? उसके मैक्यूला डेंसा कंपोनेंट ने सेंस किया, सिग्नल दिया JG सेल्स को कि भाई तुम्हारा वक्त आ गया, अब रेनिन सिक्रीट कर दो ब्लड में। रेनिन जो सिक्रीट हुआ वो एंजियोटेंसिनोजिन को, जो ब्लड में ऑलरेडी था इनएक्टिव फॉर्म, लिवर ने बनाई थी, वो उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। ये एक्टिव फॉर्म जरूर है बट लेस पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 जो कि मोर पोटेंट है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये किसने बनाई थी? लंग ने। अब एंजियोटेंसिनोजिन 2 कैसे हमारी बॉडी में GFR को वापस लेके आता है? उसको 3 तरीके आते हैं ऐसा करने के लिए। देखो कौन से। एंजियोटेंसिन 2, सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन 2 खुद क्या है? एक बहुत अच्छा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो सबसे पहले तो ये खुद ही क्या करेगा? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, नैरो डाउन कर देगा। कौन सी ब्लड वेसल को? इफरेंट आर्टीरियोल को, ये वाली जो ब्लड को दूर लेके जा रही है। ये जैसे ही और कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगी, देखो ये मैंने नैरो डाउन किया, तो ब्लड को बाहर निकलने के लिए जगह कम मिलेगी, तो प्रेशर लगेगा, पीछे प्रेशर लगेगा तो यहाँ फिल्ट्रेशन ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म है कि ये खुद ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इट्स अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, so it will do vasoconstriction। कौन से, किसका कॉन्स्ट्रिक्शन? इफरेंट, एफरेंट मत कर देना, इफरेंट आर्टीरियोल। और इफरेंट आर्टीरियोल का मतलब है जो ब्लड को दूर लेके जाती है। कहां से? नेफ्रॉन से। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म है कि एंजियोटेंसिन खुद तो कर ही रहा है, साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड को भी बुला लेगा। एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से, बाहर वाले रीजन से, ये एक हार्मोन रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? वो बॉडी में सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाने लगता है, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड CT कलेक्टिंग टिब्यूल से। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्ट्रेट से, किस में आ जाएगा? वाटर ब्लड वेसल में आ जाएगा, और ब्लड वेसल में आ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो क्या बढ़ा? GFR। देखो ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो क्या बढ़ गया? ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GFR इंक्रीज होके बैक टू नॉर्मल।
सेकेंड क्या है, एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी बताया है, सही बोल रहे हो, कॉजेज द रिलीज ऑफ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, सॉल्यूट जाएगा तो पीछे पीछे कौन भागेगा, वाटर, सो solvent, sodium ion and water from DCT, ये याद रखना जरूरी है, and collecting tubule, इन दोनों से जब ऐसा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भाई GFR भी बढ़ गया। रेनिन यहाँ तक, दिस एंजियोटेंसिन 2 यहाँ तक शांत नहीं रहेगा, वो और किसी को भी मदद के लिए बुलाएगा, और वो है आपका ब्रेन। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या सिक्रीट करवाएगा वहां से, एक और हार्मोन कॉल्ड एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इन शॉर्ट ADH। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब अगेंस्ट, डाई मीन्स डाइल्यूट, और यूरेटिक मतलब यूरिन। एक ऐसा हार्मोन जो डाइल्यूट यूरिन के प्रोडक्शन के खिलाफ है, यानी वो डाइल्यूट यूरिन बनने नहीं देगा, तो क्या करेगा, वाटर रीएब्सॉर्ब करवा लेगा, और यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जो वाटर रीएब्सॉर्ब हुआ वो वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, GFR बैक टू नॉर्मल। सो ADH causes water reabsorption and this is going to, water reabsorption करवाएगा ये आपका वही DCT वगैरह से, and this is going to increase the blood volume, increase the blood pressure and increase the GFR। GFR भी क्या हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इसका एक और नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कॉल्ड ADH। क्यों बोलते हैं अब आपको समझ में आया, क्योंकि ये डाइल्यूट यूरिन के खिलाफ है, बनने नहीं देगा। इसका एक और नाम होता है कॉल्ड वैसोप्रेसिन, मतलब वैसो मीन्स वेसल, प्रेसिन मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो ADH का एक और मैकेनिज्म क्या है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है इफरेंट आर्टीरियोल को, और इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, GFR बैक टू नॉर्मल हो गया ना। आया समझ में, क्यों बोलते हैं रैज मैकेनिज्म, क्योंकि ये कहानी शुरू की रेनिन ने। कब शुरू की, जब बॉडी में GFR रेट गिरा, GFR रेट गिरा तो JGA एक्टिवेट हुए, उन्होंने रेनिन सिक्रीट करवाया, तो रेनिन इस कहानी का हीरो है। रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन 1 विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 फिर 3 मैकेनिज्म शो करता है।
खुद तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ही, इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ाया जीएफआर, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके उठाया, भाई अब तू रिलीज कर दे एल्डोस्टेरॉन और रीएब्जॉर्ब करवा सोडियम और वाटर को, और ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, जीएफआर बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, और किसको डिस्टर्ब करेगा, जाके उठाएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करेंगी। वो दो चीजें कर सकता है, या तो वो जाके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जीएफआर, या फिर खुद इफरेंट आर्टीरियोल को जाके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इन्वॉल्व थे, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम है रैज मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या सिस्टम। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन ब्लड वॉल्यूम, किडनी के जेजी सेल्स क्या सिक्रीट करके देंगे आपको, रेनिन। रेनिन जब सिक्रीट हुआ किडनी के थ्रू, तो वो एंजियोटेंसिनोजिन को, जो कि किसने सिक्रीट किया था, लिवर ने, कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 क्योंकि इतना पोटेंट कॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, तो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, देखो जो लंग ने मैंने आपको बताया सिक्रीट की है ब्लड में, वो कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा इफरेंट आर्टीरियोल को, और या फिर वो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन फिर किडनी पर एक्ट करेंगे और रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे सोडियम और वाटर का, वाटर से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर भी सिक्रीट हो सकता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं इसे, जो किडनीज में फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि खुद कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है ब्लड प्रेशर को। अब जब ये रैज मैकेनिज्म चला, प्रेशर बढ़ा, तो हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा। जब जीएफआर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो हार्ट के आर्टरीज सिक्रीट करेंगी when GFR back to normal, heart will secrete another factor called ANF। आपको पता है ANF क्या होता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। भाई ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा, जब नॉर्मल हो गया तो उसको भी बंद करना पड़ेगा रैज मैकेनिज्म को। सो ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इज गोइंग टू इनहिबिट रैज सिस्टम कि काम हो गया है, अब शांत हो जाओ वरना मुझ पे भी प्रेशर पड़ रहा है, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेजी अपैरेटस इज मेड अप ऑफ, मैंने आपको बताया है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड मैक्यूला डेंसा। वेरी गुड, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, मतलब डाइल्यूट यूरिन को बनने से रोकेगा। बताइए। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय ADH, विच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ऑप्शन नंबर C, इसका ऑप्शन क्या है? C। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ADH facilitate water reabsorption from latter parts of the tubule, thereby preventing diuresis, उसी का ही एक और फॉर्म है। A fall in GFR or glomerular blood flow can activate the JG cells to release, हीरो हमारा RAS सिस्टम का, रेनिन। वेरी गुड।
which is being a powerful constrictor, so it is angiotensinogen 2. Which hormone causes the reabsorption of sodium ion and water from the distal part of the tubule? Aldosterone. Very good. देखा, मैंने कहा था ना आपको आज की क्लास के एंड में सब कुछ आ जाएगा. So that's all for today. I hope you really learned something good from this lecture. If you really like our video, do like, share and subscribe to our channel. Stay tuned for some more interesting video coming up soon. So click on the bell icon to get the notification soon. Bye. All the best.